Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online classes in Division Public School and College Sahiwal. Today's maths lecture, lecture number 6, class 7, presented by Ms. Rakshi Ramzan, SS Mathematics in Division Public School and College Sahiwal. Students, by the end of this lesson, you will be able to solve the sums related to algebraic expression, variable and constant. In your previous lecture, you already know about literals, variables, constant, algebraic expression and algebraic terms. And today we are going to discuss about to solve the sums of exercise number 8.1. Students, first of all, we will recall our definitions of literals. The letters or alphabets that we use to represent unknowns are called literal numbers. सबसे पहले बच्चों इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास एक रेक्टेंगल दी गई है जिसका हम एरिया मालूम करना चाहते हैं। तो उस एरिया को मालूम करने के लिए सबसे पहले हम उसकी लेंथ लेते हैं और फिर हम उसकी ब्रेथ लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ एंड ब्रेथ एंड एरिया इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई बाय B. Here is a L. L is stand for length and B is stand for breadth. L and B clearly are represented by the unknowns. So these unknowns are called literal numbers. And next we have a constant. What is constant? बच्चों constant क्या होता है? Constant एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि हम जिसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जो कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं हम जो यूज करते हैं वो सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। कोई और किसी भी फिक्स वैल्यू के लिए जो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नंबर्स हैं 2, 7, 11. These are all constant number and the number we use in our practical life that are also our constant numbers. And the next one is variable. What is variable? वेरिएबल क्या चीज होती है बच्चों? वेरिएबल वो चीज है जिसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए, ये चेंज होती रहती है, इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे वेरिएबल लफ्ज जो है वो वेरी से निकला है जिसका मतलब होता है चेंज। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि ऐसी वैल्यू जिसको चेंज किया जा सके, यानी जो फिक्स ना हो। अ सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल्ड अ वेरिएबल। और इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है x plus 5. In x plus 5, x is a variable and 5 is a constant because we can take various numerical value in the place of x, and so that we can say that x is a variable and 5 is a constant. And the next one is algebraic expression. बच्चों algebraic expression क्या होती है? Algebraic expression जो है ये is founded by the variable and constant by operational signs, addition, subtraction, multiplication and division, and it is a combination of variables and constant with the help of addition, subtraction, multiplication and division. A combination of constant and variable connected by the sign of fundamentals, operations, addition, subtraction, multiplication and division, which is called algebraic expression. बच्चों जो algebraic expression है इसमें हम operational signs use करते हैं जिसे हम कहते हैं addition, subtraction, multiplication and division. And first of all, you can see here are the numbers, numerical numbers 8, which is also algebraic expression, and 4x plus y. Here we use the symbol of operations, addition. So this is also an algebraic expression. X square plus y square, it is also an algebraic expression. A square plus 2ab plus b square, these are all algebraic expressions. Now students, what is algebraic terms? Algebraic terms is a building block of algebraic expression. You can say the parts of algebraic expression separated by operation signs, addition and subtraction, this is called its terms. And for example बच्चों इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि x plus 2y plus 3z, जिसमें हमारे पास जो x, 2y and 3z ये इसकी टर्म्स हैं, इनको किसके साथ कनेक्ट किया गया है? ऑपरेशनल साइन एडिशन के साथ जो कनेक्ट किया गया है, ये हमारे पास जो है सेपरेट किए जाए तो हमारे पास x, 2y and 3z ये इसकी टर्म्स बन जाती हैं, ठीक है। टर्म्स जो है वो हम कैसे गेन करते हैं, ये ऐड की जाती हैं और उससे एक्सप्रेशन बनती हैं। और टर्म्स जो होती हैं वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होती हैं, जैसे कि 2 and y, it is a product of factors 2 and y, and 3z, it is also a product of factors 3 and z. Now students,
in unit number 8 algebraic expression. Today we will discuss exercise number 8.1 question number 1 and 2. Students, in question number 1 we have add the terms to write an algebraic expression. हमने algebraic expressions बनानी है, हमें algebraic terms दी जाएंगी. देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास algebraic terms and algebraic terms में हमारे पास सबसे पहले दिए गए हैं 2ab, 3bc, ca. हमने इन्हें algebraic terms को algebraic expression में कन्वर्ट करने के लिए हमने एडिशन का सिंबल यूज करना है और उसके साथ और जो कि हम कोमा की जगह एडिशन का सिंबल यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab प्लस 3bc प्लस ca. हमारे पास algebraic expression क्या बन जाएगी 2ab प्लस 3bc प्लस ca. सिमिलरली हम एक और एक्सप्रेशन को देखते हैं. algebraic terms हमें दी गई है, हमें algebraic terms एक और दी गई है 7l square, 3m square, -8. बच्चों आपने इसको कैसे कनेक्ट करना है, आपने बाय पुटिंग द एडिशन और सिंबल ऑफ एडिशन. तो हम इसे एडिशन का सिंबल यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कॉमा. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास एडिशन का सिंबल जो है वो माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -8. तो हमारे पास आ जाएगा -8. 7l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर -8. आप इसे ये भी कह सकते हैं अगर वहां पर ऑलरेडी हमारे पास ऑपरेशन साइन मौजूद हो तो हम उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है. 7l स्क्वायर प्लस 3m स्क्वायर -8 हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाएगी. एक और देखिए हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दी गई है p स्क्वायर, माइनस q स्क्वायर, -r स्क्वायर. बच्चों आपने इन प्लेस ऑफ कॉमा आपने क्या करना है, जो ऑपरेशन साइंस हमें यूज किए दिए गए हैं हम उसी को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. तो अब आपने क्या करना है अलजेब्राइक टर्म से जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो आपने इन प्लेस ऑफ कॉमा आपने वहां पर ऑपरेशन साइन ऑफ एडिशन का यूज करेंगे और अगर पहले से हमारे पास सिंबल मौजूद होगा तो हम उसकी जगह वो सिंबल को इस्तेमाल कर लेंगे. जैसे कि हमारे पास माइनस ऑलरेडी मौजूद था तो हम इसको कैसे करेंगे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर और माइनस r स्क्वायर. अब हमारे पास यूनिट नंबर 8 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि राइट द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल यूज इन द ईच एक्सप्रेशन. हमने क्या दिया है इन क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास राइट द कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज्ड इन ईच एक्सप्रेशन. हमें एक्सप्रेशंस दी गई है, हमने उसमें से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से वेरिएबल और कांस्टेंट को सेपरेट करना है. बच्चों देखिए सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन दी गई है x प्लस 3. यहाँ पर जो हमारे पास इस ऑपरेशन साइन के साथ कनेक्ट किया गया है एडिशन के साथ, तो हमने इन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में से वेरिएबल जो है वो सेपरेट कर लेना है, कांस्टेंट हम अलग कर लेना है. आपको पता है वेरिएबल कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो हमारे पास यहाँ पर एज ए वेरिएबल अल्फाबेट्स कौन सा यूज हुआ है x. तो हम यहाँ पर x एज ए वेरिएबल और फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में हमारे पास यहाँ पर है 3 जो कि हमारे पास एज ए कांस्टेंट यूज किया जा रहा है. अब हम एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं. ये हमारे पास दिए गए हैं 3a प्लस b माइनस 2. ऑपरेशन साइंस यहाँ पर यूज किए गए हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन. 3a का मतलब क्या होता है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल और कांस्टेंट है उसको हमने अलग अलग करके लिखना है. यहाँ पर 3a का मतलब क्या है, आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एज ए कांस्टेंट उसे कंसीडर नहीं करते, वो एज ए कोफिशिएंट इस्तेमाल किया जाता है. तो हमारे पास यहाँ पर जो है एज ए कांस्टेंट से मुराद ये होगा कि जिसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा. तो इस केस में हमारे पास कांस्टेंट क्या है, एज ए हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर क्या यूज हो रहा है -2. तो और वेरिएबल कौन से यूज किए जा रहे हैं यहाँ पर a और b. द अल्फाबेट्स जो हमने यहाँ पर यूज किए हैं वो है हमारे पास a और b जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होती और वो हमारे पास है a और b. जबकि हमारे पास जो फिक्स वैल्यू में यूज हो रहा है वो है -2. तो हम कह सकते हैं कि -2 एज अ कांस्टेंट टर्म हमारे पास यूज किया जा रहा है, -2 एज अ कांस्टेंट यूज किया जा रहा है. इसी तरह हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दी गई है जिसमें दिया गया है l रेज़ पावर 2 प्लस m रेज़ पावर 2 प्लस n रेज़ पावर 2. तो हमारे पास यहाँ पर 2 एज अ पावर यूज किया जा रहा है. बच्चों इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो 2 है हमारे पास एज अ पावर यूज किया जा रहा है, नॉट एज अ कांस्टेंट. तो पावर जो है वो हमारे पास एज अ कांस्टेंट नहीं हम यूज करें. तो हम इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, जो अल्फाबेट्स हमने यूज किए जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, वो हमारे पास है l, m और n. और हमारे पास यहाँ पर एज अ कांस्टेंट कोई टर्म भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर डैश लगा देंगे, नो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. सो कांस्टेंट हमारे पास इसमें मौजूद नहीं है. Today we have discussed about algebraic expression, algebraic terms, variables, constants and latest sum of exercise number 8.1.
हमारी होम असाइनमेंट्स हैं, तो आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6 पार्ट। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।